Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to discuss something to do questions from chapter number 1 to chapter number 10. We had already discussed all the value based questions from chapter number 1 to 10. Now come to the point, how it is important or why it is important to share the responsibilities. It is important to share responsibilities at home to reduce the burden or work of other and make them relax. Next one is, I share responsibilities for household chores. That is, I press my dress and polish my shoes. I wash or dish my refuse utensil also. I make evening tea for my mother and father. Next is, who is the role model in your family and why? My mother and father is my role model. My mother cook food and take care of us, and my father is very loyal and honest toward his duty. Next is from chapter number 2, human migration. Write the hardship faced by rickshaw puller. The hardship that faced by rickshaw puller, that is, the health of rickshaw puller are in very bad condition. They face discrimination in the society on the basis of work and income. They are marginalized and live unjust lives. Their condition become very miserable or become more miserable. Come on to the next question number 2. Give the name of some organization that help the victim of natural calamities. The organization that help the victims of natural calamities are International Red Cross Society, International Relief Teams, Bill Gates and Melinda Gates Foundation, Khalisa Aid, All Hands. These are the organizations which helped the victim of natural calamities. If any family members moving from one place to another, then what are the things worried about? The things is to be worried about if any family members are moving then. Number 1, open discussion should be carried out with strangers. Number 2 is shelters, expenses and other forms of bill to be managed. Location of the house, nearby markets and people should be considered. These are the 3 things for which people are worried if they go outside from their home. Write the difference between immigrant and immigrant. Immigrant, it is the act of coming to another country. It means coming to another country from other. Next is immigrant. It is the act of leaving your own country. It means leaving your own country and settle down to the another country. It means come to the another country, immigrant, and leave the one's country, immigrant. Write the name of any 3 migratory birds and animals. Migratory birds are sandhill crane, hummingbird, Canada goose, snow goose and Siberian crane. Migratory animals are wild beast, pronghorn, reindeer, zebra. Next is chapter 3, variation in shelters. People in small boats come selling vegetables. You can use a small boat to go around like meet friend. कहता है पीपल इन स्मॉल बोट्स कम सेलिंग वेजिटेबल्स. जो स्मॉल बोट में होते हैं वो वेजिटेबल सेल करने के लिए आते हैं. क्वेश्चन किस बेसिस पे है? क्वेश्चन है कि अगर आप किसी हाउस बोट में ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हाउस बोट में आप रह रहे हैं तो आप किस तरह से अपनी ज़रूरतों को, अपने बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे. तो अगर आप हाउस बोट में रह रहे हैं तो आपके आसपास भी हाउस बोट हैं जो कि सामान सेल करते हैं और लोगों को कन्वीनियंट या सुविधा या फैसिलिटेट करते हैं. यू कैन यूज़ स्मॉल बोट टू गो अराउंड लाइक मीट फ्रेंड से मिलने के लिए आप स्मॉल बोट का यूज़ कर सकते हैं. यूज़ बोट एज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बोट को ट्रांसपोर्टेशन के मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. टू इधर गो टू द अदर बोट और सिंपली स्पीक टू द पर्सन इन द अदर बोट. Give the example of some amenities faced by slum areas.
फर्स्ट वन इज़ क्लीन वाटर टू ड्रिंक, उनको क्लीन वाटर नहीं मिल पाता है पीने के लिए। कौन? जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में रहते हैं, उन लोगों के बारे में पूछा जा रहा है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, सफ़र करते हैं। प्रॉपर लिविंग कंडीशन आर एब्सेंट, प्रॉपर लिविंग कंडीशन जो होता है वो भी एब्सेंट होता है, मतलब उनके पास प्रॉपर लिविंग कंडीशन नहीं है, घर नहीं होता है या प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं है। दे डू नॉट हैव इनफ टू ईट, उनके पास खाने के लिए भी इनफ फूड नहीं होता है। गिव द एग्जाम्पल ऑफ सम शेल्टर्स एंड द मटेरियल विच यूज इन सच टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। हट्स, बंगलो, अपार्टमेंट। मेटल विच इज यूज टू मेक देम, वुड, कंक्रीट, मेटल, स्टोन, ब्रिक्स, क्ले, बांस, सैंड, etc। इसमें सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। कंक्रीट सीमेंट को कहते हैं, छोटा छोटा कण पत्थर। एंड मेटल, स्टोन, ब्रिक, क्ले, बार, बार जो होता है ये छड़ कहलाता है, जो लोहा का छड़ दिया होता है वो। बाकी सारा कुछ समझ में आ ही रहा होगा। मेटल्स, स्टोन पत्थर, ब्रिक ईंटा, क्ले मिट्टी, सैंड बालू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 1। क्वेश्चन है, इफ़ यू नेवर फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी हाउ यू कुड हेल्प देम। आपका नेवर्स अगर वाटर स्कैरसिटी से प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है या प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो आप कैसे उनकी हेल्प करेंगे। लेट देम हैव स्मॉल शावर्स एट योर हाउस, अपने घर पर उनको नहाने के लिए परमिशन देंगे। ब्रिंग ओवर बकेट ऑफ क्लीन वाटर फॉर देम टू ड्रिंक एंड क्लीन डिशेज, उनको क्लीन वाटर प्रोवाइड करेंगे एक बकेट में जिसको कि वो पीने के यूज़ में ला सके और बर्तन धोने के लिए यूज़ कर सकें। अलाउ देम टू यूज़ योर वॉशिंग मशीन, अपना खुद का वॉशिंग मशीन उनको यूज़ करने के लिए अलाउ कर सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए। एंड नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 5, कम्युनिटी सर्विसेज। विच टाइप्स ऑफ सर्विसेज और व्हाट यू वुड लाइक टू चेंज इन द वर्ल्ड। फर्स्ट वन इज डोंट मेक कंपेरिजन, कंपेरिजन नहीं करेंगे किसी से। डोंट जज पीपल, किसी को जज नहीं करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट अ गार्डन, गार्डन प्लांट करेंगे। एंड स्टॉप पॉल्यूटिंग द वाटर, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएंगे। या तो वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएंगे या फिर वाटर को पॉल्यूट नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कम्युनिटी सर्विसेज हेल्प्स द अदर। They can work to promote social or political change on a broad scale or very locally. It play a critical part in developing society, improving communities, etc. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो NGO के बारे में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं होता है। ये अपने खुशी के लिए या फिर दूसरों को सुविधा पहुंचाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4, व्हाट आर द सजेशन गिवन बाय गांधी जी रिलेटेड टू द सैनिटेशन। फर्स्ट वन इज सैनिटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। सैनिटेशन जो है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। परफेक्ट सैनिटेशन मेक एन आइडियल विलेज, परफेक्ट सैनिटेशन मेक एन आइडियल विलेज। अगर परफेक्ट सैनिटेशन हो तो विलेज आइडियल हो सकता है। एंड अ टॉयलेट मस्ट बी एज क्लीन एज ड्राइंग रूम, जैसे अपने ड्राइंग रूम को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही टॉयलेट को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वाई कम्युनिटी सर्विस शुड बी इम्पॉर्टेंट। कम्युनिटी सर्विसेज डेवलप एंड इंक्रीज सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम्युनिटी सर्विस क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करता है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई एन एकेडमिक लर्निंग। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू अप्लाई एन एकेडमिक लर्निंग, एकेडमिक लर्निंग के लिए, एक अच्छी शिक्षा के लिए। इम्प्रूव्स लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्स लाइफ लॉन्ग, LIFE लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेशंस। हेल्प स्टूडेंट्स फाइंड देयर पैशंस एंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट को हेल्प करता है किस चीज़ के लिए? फाइंड देयर पैशंस एंड इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट, उनके हॉबीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। समथिंग टू डू और मिसलेनियस क्वेश्चन में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।